لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. انڈین حج مشن مکہ المکرمہ میڈیا سینٹر سے حج 2014 کے دوسرے فیز کی خبروں کے ساتھ صلاح الدین کا سبھی ناظرین کو آداب. گزشتہ روز 7 مزید فلائٹس ملک کے مختلف امبارکیشن پوائنٹس کے لیے مدینہ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئیں. اس طرح اب تک 272 فلائٹس حجاج کرام کو لے کر ملک واپس پہنچ چکی ہیں. ان کے ہمراہ تقریباً 75,000 حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے کے بعد اپنی اپنی منزلوں پر واپس پہنچ چکے ہیں. ابھی بھی تقریباً 24,000 حجاج کرام مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں. وہیں 30 اکتوبر کو رانچی جانے والی کی فلائٹ AI 5306 اور بھوپال جانے والی فلائٹ AI 5356 غیر متعینہ مدت کی دیری سے چلنا بتایا جا رہا ہے. اب تک 8 امبارکیشن پوائنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جہاں سے آئے ہوئے حجاج کرام اپنے اپنے مقامات کو واپس پہنچ چکے ہیں. گزشتہ روز مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے حجاج کرام کا آخری قافلہ بھی روانہ ہوا. اس طرح اب مکہ المکرمہ سے ہندوستانی حجاج کرام کی پوری طرح واپسی ہو چکی ہے. انڈین حج مشن کے مکہ آفس میں پوسٹ حج فیس کے لیے مدینہ موومنٹ ڈیسک کا قیام کیا جاتا ہے. اپنے ناظرین کے لیے پیش ہے اس پر ایک رپورٹ. انڈین حج مشن کے آفس میں ایک ڈیسک اور کام کرتی ہے مدینہ موومنٹ. مدینہ موومنٹ ڈیسک کے AHO جناب SS عالم صاحب سے ہم مخاطب ہیں. ان سے جانیں گے کہ اس سے کس طرح حجاج کرام کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی کے لیے کیا نظم بنایا گیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ حجاج کرام کو کس طرح مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ شفٹ کیا جاتا ہے, کیسے اس کا شیڈول ہوتا ہے اور کیسے اس کو خبر کی جاتی ہے, اور ابھی ان کے کیا اعداد و شمار ہیں جو حجاج کرام وہاں بھیجے گئے ہیں آج کی ڈیٹ تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ موومنٹ ڈیسک انڈین حج مشن کے بہت اہم ڈیسکوں میں سے ایک ڈیسک ہے. اس کا کام حجاج کرام کو مکے سے مدینہ سیفلی, ٹائملی اور سپورٹ پہنچانا ہے. وہاں پہ ان سے جانے سے پہلے ان کا ایکوموڈیشن اور کیٹرنگ وغیرہ کی ویوستھا کرنا ہے. اس سال پچھلے سالوں کے طرح پوسٹ حج ہی میں موومنٹ ہو رہا ہے, پری حج میں موومنٹ نہیں تھا. یہ موومنٹ 8 اکتوبر 2014 کو شروع ہوا. حج کے بعد سے شروع ہوا. 8 اکتوبر کو حج کے بعد شروع ہوا. سب سے پہلے بیچ میں 227 حجاج کرام کو لے جایا گیا. ہمارا ٹاسک جو تھا, جو راس کے تھے یعنی حج کمیٹی کے تھرو آئے تھے 47,301 حجاج کرام, اور جو مختلف روات کے ذریعے جن کو جانا تھا ان کی اعداد تھی 1,559. آج کی ڈیٹ میں جو آج 1 نومبر ہے, ریگولر موومنٹ ختم ہو گیا. اس میں ہم لوگوں نے 47,242 راس کے جتنے حاجی تھے ان کا موومنٹ کرایا اور روات کے سارے حاجیوں کو موومنٹ کرایا. اس کے مقابلے میں تقریباً 59 حاجی رہ گئے جن کے تفصیل یہ ہے کہ کچھ حاجی کا انتقال ہو گیا اور کچھ حاجی بنا مدینہ کے زیارت کے واپس انڈیا چلے گئے. کچھ حاجی ابھی اسپتال میں بیمار ہیں, کچھ حاجی مسنگ ہیں, اور کچھ حاجی کے بارے میں ایسا ہے کہ ان کی انفارمیشن نہیں ہے, وہ مدینہ جدہ بنا انٹیمیشن کے رہ گئے. اس کو اسموتھ فنکشننگ کے لیے ہمارے یہاں ایک نظام ہے جس میں مدینہ سے ہمارے تشریح اور عقد آتے ہیں کہ اتنے حاجیوں کو وہاں پر جانے کی یہ پرمیشن مل گئی ہے. تو اس کے لیے مدینہ سے 2 روز پہلے تشریح عقد آتا ہے. پھر اس پہ اسی حساب سے ہم مکتب اور برانچوں کو نوٹس جاری کرتے ہیں کہ اس مکتب سے اور اس برانچ سے اتنے حاجی کو موومنٹ ہے. 2 روز ایڈوانس ہم ان کو انٹیمیٹ کر دیتے ہیں اور الرٹ کر دیتے ہیں, نوٹس جاری کرتے ہیں. اور ہم لگاتار
वहाँ जहाँ मदीना है वहाँ बिल्डिंग तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना आए, उसके बाद उनका रहने की, उनके खाने की सब तरतीब बन जाए। इसके लिए इस डेस्क में 5 HA, 1 HO और 15 सीजनल लगाए गए थे, जिन्होंने बहुत मेहनत किया और उनके बगैर ये काम नामुमकिन सा था। हमारे अब्दुल मुकीस साहब और आदिल सौदागर साहब का बहुत इसमें कोऑपरेशन रहा। उन्होंने बहुत हमें गाइड किया और उनका एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आया। उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है और इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिक्कतें भी पेश आई, जैसे बसें इंफीरियर क्वालिटी की मिली और इसमें उजान इकराम ने दिक्कत उनको भी हुई और फिर बसों का लेट आना। कभी कभी ऐसा हुआ कि जुमे को भी मूवमेंट था, उन्होंने कहा कि जुमे के नमाज का मामला, तो उन्होंने कहा कि जुमा पढ़ के जाएंगे, मगर इस तरह से पहले से ही सब तय हो जाता है शेड्यूल, उसमें आगे पीछे करने में दिक्कत होती है। आइंदा सालों के लिए इस तरह का ऐसा निज़ाम हो कि बस जो है अच्छी क्वालिटी की मिले। इसके बारे में हमने सजेशन भी दिया है और हमें कुछ कंप्लेंट भी मिली, जिसका जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा सालों में ऐसी कंप्लेंट ना हो। और इस सिलसिले में मुजाहिदीन की तरफ से कंप्लेंट्स आई। हाँ, मुजाहिदीन से कंप्लेंट यही है कि उनको जो कभी फजर में हुआ तो उनको इंटीमेट किया, जोहर में 11th आवर में ये हुआ कि जोहर में जाना है या जोहर में जाना है, बस नहीं आई। तो इसके लिए जो है तशरीह और अब तो जो है पहले से 3-4 दिन पहले से आ जाए, 2 रोज़ पहले से आ जाए और वो फाइनल है। बीच में लास्ट में तशरीह बदल जाती है तो हाजियों को दिक्कत है। मुफ्ती साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि मुजाहिदीन इकराम कुछ अपना इसमें प्री शेड्यूल या पोस्ट शेड्यूल कुछ चेंज कराने के लिए भी आपके पास रुजू करते हैं क्या, मदीना मूवमेंट के लिए? कि कुछ जल्दी जाना चाहते हो या ज़्यादा प्यार करना चाहते हो या कम प्यार करना चाहते हैं, ऐसे कुछ केसेस आए? कुछ हाजी होते हैं जो हिंदुस्तान में किसी जॉब पर होते हैं या हिंदुस्तान के बाहर किसी और मुल्क में जॉब पर होते हैं और हज के पर्पज़ से अपने वालिदैन के साथ या बीवी बच्चों के साथ आते हैं, तो वो लोग अपने जॉब की वजह से पहले जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो लोग जा कर के अपना टिकट चेंज कर लें, TRC जो है उसमें जा कर के अपना टिकट चेंज कर लें, रिपोर्ट कर लें, तो उस हिसाब से हम लोग मूवमेंट कराते हैं। तो आमतौर पर हाजी 40 नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं। तो नॉर्मल शेड्यूल ऐसे ही बनाया जाता है कि 40 नमाज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन बाज़ लोग जो है किसी वजूहात की बिना पर ज़रूरत की वजह से, एम्प्लॉयमेंट छुट्टी ना होने की वजह से उसको मुख्तसर करके कम मुद्दत के लिए मदीना ज़ियारत करते हैं, मदीना मुनव्वरा, और उसके बाद अपने वतन वापस हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग आउट ऑफ टर्न या चेंज ऑफ फ्रेट के नाम से जो है अलग से एक शेड्यूल बनाते हैं और उनको स्पेशल जो है मूवमेंट कराते हैं लोगों का। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं, हर साल होते हैं ऐसे। और मदीना मूवमेंट से मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात हो जो आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए, जो फ़ायदेमंद हो, आने वाले सालों के लिए भी मुजाहिदीन के ज़हन में रहे? ऐसे कोई चीज़ ख़ास नहीं है, मदीना मुनव्वरा ज़ियारत करना ही बहुत बड़ी सआदतमंदी है। तो हम तो चाहते हैं कि जो है लोग आएँ और इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से 40 नमाज़ें पढ़ें और उससे ज़्यादा भी अगर मुमकिन है तो पढ़ें इंशाअल्लाह, और ज़ियारत से मुशर्रफ हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मस्जिद नबी के बाद फिर उसमें जो है फ़ायदा उठाएँ। इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ तकलीफें होती हैं, जैसे हमारे आप सब बता रहे थे, कुछ दिक्कतें आती हैं कभी कभी, लेकिन बहुत बड़ा टास्क है मालूमीन के जरिए तय की जाती है। नहीं, असल में क्या है कि मदीनी बसेस जो होती हैं ये कंपनी सिंडिकेट है, कार जनरल कार सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट से हम लोगों का एग्रीमेंट होता है और उसके साथ एग्रीमेंट ये होता है कि क्यू सिस्टम होता है कि हर कंपनी की बसेस वो बारी बारी क्यू से निकालते हैं, तो जिसके मालिक को जो बस मिल जाए वो उसके किस्मत है। तो कभी किसी मतलब को जो है कोई ख़राब बसें मिल जाती कंपनी की, और एक ही कंपनी की अच्छी बसें भी होती हैं और कुछ खस्ता बसें भी होती हैं, तो खस्ता बसें कभी मिल जाती है, दिक्कत पेश आती है। तो उसका तरीका यह है कि स्पेशल एग्रीमेंट करके हम लोग अपने हिसाब से अच्छी बसें ले सकते हैं, उसके लिए डिफरेंस पे करना पड़ता है। उसके लिए हमारे CG साहब और प्रोफेसर जो है कोशा है, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा कदम उठा सकते हैं। आज माशाअल्लाह आखिरी बैच जो है मुजाहिदीन इकराम का
मक्का मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा के लिए रवाना हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरा मूवमेंट जो है वो जारी रहा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जी मुकम्मल रहा और कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने साथी इम्तियाज़ और कैमरामैन काशिफ के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।